So, hi everyone. Thanks for being with us and joining us today. आज मेरे साथ हैं हमारे very special guest, Mr. Rahul Chugh. So, Rahul Chugh is a qualified chartered accountant. He qualified CA at a very young age, and CA qualify करने के बाद he started working in different avenues. राहुल साथ साथ ही बहुत ही बड़े क्रिकेट एंथुसियास्ट भी हैं, और अगर आपको कोई क्रिकेट रिलेटेड टिप्स भी चाहिए तो आप फील फ्री करें राहुल को रीच आउट करने में. He's very spiritual as well. And other than this side of Rahul, of course, he's been very studious and he's very smart as well. I also have the honor of working with his brother. So that's how Rahul got a part to be in our webinar. So thank you so much, Rahul, for joining us. And Rahul is currently assistant manager in Rights Limited. Rights के बारे में राहुल हमें थोड़ा सा और बताएंगे along with his experience of how he joined this job. But yes, over to you, Rahul, and thanks for being with us today. Thank you so much, Prachi, for inviting me on this call. So basically, my after clearing CA, so my experience is like 1 year I have experience in Big Four, KPMG. I have worked for 1 year in stat audit department. After that, I have moved to IT company for 2 years. Basically, in IT company, what we used to do is we used to take the requirements from the clients and we used to implement the processes like budgeting, forecasting, and all those processes we used to understand from the client and we used to implement that on that those specific softwares. Post which I have moved to PSU sector. So how I got to know about rights? There are specific WhatsApp groups and YouTube channels that post vacancies about government, whatever vacancies are there in PSUs. So they post the vacancies. So I got to know rights vacancy from that YouTube videos and WhatsApp groups. So I have not prepared much at that time, but after applying for the same, I got to know like what are the culture at a PSU and how can we apply for the same and what are the PSU's policies etc. So मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिकली लोगों के मन में ये रहता है कि क्योंकि जो सीए फाइनलिस्ट के बच्चे भी होते हैं तो उनको ये नहीं Hmm. पता होता कि हम पीएसयू का वैकेंसी में अप्लाई कैसे करें, ये Correct, वैकेंसीज हम correct, कैसे पता चलेगा. सो correct. उसके हाँ. लिए बेसिकली ये रहता है कि जो भी वैकेंसीज होती है उसके लिए पीएसयू में जाने के लिए दो तीन तरीके होते हैं. कि सबसे पहला तरीका तो हो गया कि आप पीएसयू ज्वाइन कर सकते हैं आइदर थ्रू आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट. कि Correct. आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट में अगर आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है तो आपको उसके थ्रू आप इंटरव्यू देके पीएसयू ज्वाइन कर सकते हो. मैंने भी जब इंटरव्यू कैंपस प्लेसमेंट दिया था तो मेरे को भी आईटीआई लिमिटेड ने एक्चुअली शॉर्ट लिस्ट करा था और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था. बट एट दैट टाइम आई डिड नॉट ज्वाइन द पीएसयू. आई हैव Okay. गॉन फॉर द प्राइवेट सेक्टर. आई हैव गॉन फॉर द बिग फोर एट दैट टाइम. सो अदर ये देन काफी दैट इंटरेस्टिंग आई है राहुल. राइट. At that time, I don't want to join the PSU, but at the time progresses, I got to know about benefits and all the details about the PSU. So I got interested in this. राहुल So ऑल्सो, after, right, सॉरी, yes, yes, जस्ट Prachi. और एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम हिंदी में ज्यादा कंटेंट रखें, बिकॉज ज्यादा इजी रहता है लोगों को रीच आउट करना. लोग ज्यादा थोड़ा सा फेमिलियर फील करते हैं. सो थोड़ा सा हम हिंदी पे ज्यादा फोकस करेंगे. ऑल्सो Okay, राहुल, okay, मेरा Prachi. आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसा आपने बोला कि आपको कैंपस प्लेसमेंट में भी ऑफर था पीएसयू का. तो राहुल, अगर आप हमारे जो भी लोग देख रहे हैं इसे, आप उन्हें ये एक एडवाइस दे पाए कि कैंपस प्लेसमेंट्स में अगर आपको याद हो कुछ फ्रेंडली कि आपको क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, या क्या उनका एक थीम था, क्या पैटर्न था, अगर आप थोड़ा सा इस पे कुछ बोल पाए तो प्लीज. So प्राची, बेसिकली अगर कैंपस प्लेसमेंट में हम कोई भी पीएसयू का इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो शॉर्टलिस्ट का भी ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि पीएसयू का कि अगर आपकी रैंक है या कुछ है तो कि आपको शॉर्टलिस्ट कर ही लिया जाएगा. ऐसे भी बंदे हैं कि जिनके रैंक्स है बट उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, और ऐसे ही बंदे जिनके मार्क्स थोड़े लेस थे बट उनको शॉर्टलिस्ट किया गया. तो बट अगर आपके मार्क्स ज़्यादा है तो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर जरूर होता है, उसमें पीएसयू जरूर आपको शॉर्टलिस्ट करती है. तो जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे बेसिकली सबसे पहले चीज़ तो वो ये देखते हैं कि ये बंदा पीएसयू में आना भी चाहता है या नहीं चाहता. तो एक क्वेश्चन तो यही था कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पीएसयू, बिकॉज इन कंपैरिजन टू प्राइवेट एट दैट टाइम
they are offering much less salary around, I will not disclose the salary, but Yes. they are offering much less salary. So the one question was that why do you want to join PSU? Because you are currently working in Big Four. Right. So why do you want to join PSU? So sorry, उनको उस चीज़ को हम ऐसे टैकल कर सकते हैं कि उनको ये पता चलना चाहिए कि हम उनको पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हैं उनको, और एक चीज़ होती है कि ये बंदा शॉर्ट टर्म में तो नहीं छोड़ देगा अगर पीएसयू ये ज्वाइन करता Right. भी है तो। क्योंकि एक डिसाइडिंग फैक्टर ये रहता है पीएसयू में कि जो भी बंदा ज्वाइन करता है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के ही ज्वाइन करता है। Mhm. तो एक क्वेश्चन उनका ये भी था कि अगर हम आपको अभी जॉब ऑफर कर भी देते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप 1 साल में छोड़ के हमें चल तो जाओगे। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम्म। आप कहना चाहेंगे। राहुल, अगेन मेरा इस बारे आपका जो राइट्स का एक्सपीरियंस रहा, अगर आप थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि आपका राइट्स में जैसे प्रोसेस हम सबको पता है कि राइट। हम फॉर्म भरते हैं, फिर हम एक एग्जाम देते हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में भी अगर आपके कोई टिप्स हैं वो हम थोड़ा बाद में कवर करेंगे। मैं अभी आपका राइट्स का इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना चाह रही हूँ कि हाउ वाज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट राइट्स, आपका कैसा रहा, प्रोसेस क्या रहा, अगर आप शॉर्ट में बता पाए आपको क्या क्वेश्चंस पूछे गए, और अभी आप क्या चीजों पे बेसिकली काम कर रहे हैं। सो राइट्स में जो मेरा इंटरव्यू प्रोसेस था बेसिकली क्या रहा था कि सबसे पहले हमें सुबह सुबह बुलाया गया था, तो सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए गए थे सुबह। उसके बाद एट द टाइम ऑफ इवनिंग जो मेरा इंटरव्यू था, हम जो सुबह अराउंड 9 AM रीच कर गए थे उधर। बट जो मेरा इंटरव्यू था अराउंड 5 to 5:30 के अराउंड हुआ था, क्योंकि वो एक बैच में पर्सन्स उठाते हैं और उनका इंटरव्यू लेते रहते हैं। तो जिस टाइम मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होता है कि एट प्रेजेंट जो आपका एक्सपीरियंस है वो हमें डिटेल में बताओ। क्योंकि उनको भी ये होता है कि जैसे फाइनेंस में अगर आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है तो फाइनेंस में क्या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, जीएसटी भी है, एक सेंट्रल अकाउंट्स भी आ गया है, एक एक्सपोर्ट का अलग एक है, एचआर का अलग एक है। तो आपके एक्सपीरियंस के थ्रू वो ये जानना चाहते हैं कि आपको वो कौन से डिपार्टमेंट में फिट कर सकते हैं, कि वो अगर आप उनके डिपार्टमेंट में ही फिट नहीं हो पा रहे तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले उन क्वेश्चन उनका ये होगा कि आप अपने बारे में बताइए, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, करंट कंपनी में आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, करंट एक्सपीरियंस, और क्या क्या आपने जो बजटिंग है फाइनेंस में कितना आपका एक्सपीरियंस है। जो एक मेरे को लगता है कि जो मेरे लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर, जो एक मेरे लिए एडवांटेज था कि फाइनेंस के साथ साथ जो मेरा था, मेरा टेक्निकल भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैं आईटी राइट। कंपनी में काम कर रहा था। तो मेरे जो एक्सपीरियंस था सॉफ्टवेयर्स वगैरह में भी काफ़ी अच्छा था। पावर बी आई सच एज पावर बीआई और अदर भी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो अगर आप जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो, क्योंकि कोई भी सीए होगा, अगर ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर 10-15 वैकेंसी है तो पर पर्सन पर वैकेंसी पे वो 7-8 बंदों को बुला रहे हैं। यस। तो अगर 120-30 बंदे वो बुला रहे हैं तो हर बंदा ऐसा सीए, हर कोई ऐसा होगा कि जो फाइनेंस में अच्छा होगा, बट अगर एक टेक्निकल भी आपका अच्छा होगा तो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। तो राहुल, मुझे आप लगता है उनको। ये सबसे बेस्ट टिप दिया है आपने, और आई कांट अग्री मोर विद दिस। बिल्कुल सही बात की आपने कि सीए तो सभी कोई है, या सपोज कुछ वैकेंसीज ऐसी होती है जहाँ सीए और एमबीए इंटरमिटेंटली, या कॉस्ट अकाउंटेंट भी इंटरमिटेंटली मांगते हैं, सीए/एमबीए स्लैश कॉस्ट अकाउंटेंट होता है। तो लाइक एक डिग्री तो सबके पास है, बट आपके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज है वो क्या है। एंड लाइक यू सेड कि आपके अंदर जैसे वो एज था, आपको पावर बीआई पता था, आपको और सॉफ्टवेयर्स पता थे, आपकी एक्सेल स्किल स्ट्रांग थी, ये सारा आपके पास एक कंप्लीट पैकेज था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपकी हायरिंग में। सो जो भी लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि डिग्री है आपके पास, बट आपके पास वो एक्स्ट्रा स्किल क्या है। वो आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, आपका टीम प्लेयर होना हो सकता है, कोई भी, इट कैन बी अ सॉफ्ट स्किल, इट कैन बी अ टेक्निकल स्किल, बट आप मेक श्योर करें कि आप उस स्किल पे वर्क करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स थैंक्स राहुल, ये बहुत ही बहुत अमेजिंग टिप था ये। तो टेक्निकल पार्ट में बेसिकली हम उनको ये बता सकते हैं कि हमारा ये एक्सेल में मैं अच्छा हूँ या डाटा एनालिसिस में मैं अच्छा हूँ। और उसको हम कोई भी, अगर हमने आर्टिकलशिप में कोई उससे, क्योंकि अगर हम एज अ फ्रेशर जा रहे हैं तो हम आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस दे कर सकते हैं कि मैंने ये डाटा एनालिसिस बहुत करा हुआ है। क्योंकि इन पीएसयू कोई भी कंपनीज होगी तो उसमें क्या होगा, ह्यूज डाटा होगा, तो उसको आपको डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा, एक्सेल में आपको फॉर्मूलेस लगाने पड़ेगा, तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी।
तो आप जब तक आप उनको बता नहीं पाओगे कि आप उनको कैसे बेनिफिट दोगे उनकी कंपनी के लिए, तो वो एक फायदा नहीं होगा उस चीज़ का। अदर देन दैट, अंडरस्टूड। जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे, आप एक और चीज कर सकते हो कि अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक चीज आप कर सकते हो कि सबसे पहले कोई भी पर्टिकुलर कंपनी है तो आपको उनकी वेबसाइट के थ्रू जाना है। हम्म। उनकी वेबसाइट पे जाके उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हो, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो। ऑडिट रिपोर्ट से आप क्या एक्सट्रैक्ट करोगे कि जो भी उन पे कंपनीज पे एट प्रेजेंट इंड एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो एट प्रेजेंट एप्लीकेबल है, तो वो इंड एस आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। और उस पे आप रिसर्च करके जाओगे उस कंपनी के बारे में, रिसेंट अमेंडमेंट्स क्या है, या जो भी रिसेंट न्यूज़ है, मार्केट में ऐसा कोई न्यूज़ है जो उस कंपनी से रिलेटेड रिसेंट रिसेंट में चल रहा है। तो क्योंकि अगर कंपनी ऐसा है कि उसके बिगेस्ट क्लाइंट्स कौन है, या कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स है जो कंपनीज ने रिसेंट में कंप्लीट करे हैं, या कोई बहुत बड़ा ऑर्डर है ऐसा कि जो कंपनी ने रिसेंट में गेन करा है, जिससे उनको बहुत अच्छा रिवेन्यू सोर्स मिल चुका है। तो ये चीज़ें एक तरह से आपके लिए एडवांटेज काम करेगी। हो सकता है आपसे वो कंपनी के बारे में ना पूछे, लेकिन हम्म। आखिरी में जब वो आपसे एक एक क्वेश्चन पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, तो उधर भी आप इसको एक घुमा फिरा के उनको बता सकते हो कि मैंने ये सारी डिटेल्स वगैरह पढ़ी है, तो ऐसे ऐसे हम्म। मेरा ये एनालिसिस है। ये बहुत बहुत बड़ी टिप थी राहुल की। इस बहाने से लाइक डू यू हैव अ क्वेश्चन ऐसे करके वी कैन कनेक्ट विद द इंटरव्यू पैनल और हम उनको बता सकते हैं जो भी हमारा एनालिसिस रहा, जस्ट टू लीव दैट एक्स्ट्रा मार्क अपनी वो एक छाप छोड़ने के लिए। और एक जो मेरे को लगता है कि एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि ऑलवेज मेंटेन आई कांटेक्ट विद द रिक्रूटर। लाइक इफ इन राइट्स देयर आर 5 to 6 person पैनलिस्ट वर देयर, सॉरी, so 5 to 6 persons were there, but if one particular person is asking any question, it does not mean you have to maintain eye contact with that particular person only. You have to answer with maintaining eye contact with all the persons. So if you will maintain the eye contact, they will feel like just this person has communication skills also. यस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स ऑल्सो ग्रेट पॉइंट राहुल। राहुल, और कुछ ऐसे लाइक टेक्निकल पार्ट्स में कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक अगर आप इंडेस जीएसटी या इनकम टैक्स के रिगार्डिंग कुछ अगर वन पॉइंटर हो या कुछ बहुत ही बड़ी एडवाइस हो आपके पास, अगर आप वो कुछ देना चाहें तो कि ये तो डेफिनेटली पढ़ के ही जाओ टाइप्स। तो सी रचिक, क्या होता है कि जैसे हम सीए फाइनल का ही प्रिपरेशंस करा करते थे, तो उसमें हम क्या करा करते थे कि क्योंकि हमें काफ़ी बिग सिलेबस हुआ करता था, तो उसको हम एक समरी में मेंटेन करा करते हैं ताकि लास्ट वन डे में हम उसको वो कर पाए, रिवीजन अच्छे से कर पाए। तो इन पीएसयूज में भी हम उस चीज़ को वैसे कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सबको पता है कि फाइनेंस का सिलेबस है, और अदर देन फाइनेंस में भी इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, ये सारा सिलेबस है। अगर हमें पेपर देना है तो इंटरव्यू के लिए अगर हम जा रहे हैं, तो इंडेस आप देखोगे तो सम स्पेसिफिक इंडेस है जो हर एक कंपनी में एप्लीकेबल होएगी ही होएगी। फॉर एग्जांपल लीज का इंडेस 116 हो गया, इंडेस 115 हो गया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया। अदर देन दैट प्रोविजंस कंटिजेंसीज, ये हर कंपनी में एप्लीकेबल होगा। अदर देन दैट सेगमेंटल ऑपरेशंस होते हैं, जो सेगमेंटल रिपोर्टिंग होती है उस वो भी सभी कंपनी पे एप्लीकेबल होगी, क्योंकि हर कंपनी, जो भी बड़ी कंपनी होगी, लिस्टेड कंपनी होती है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होएंगे। और अगर हम जीएसटी में जाएंगे तो जो जीएसटी के बेसिक टॉपिक्स होते हैं कि आईटीसी हो गया या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो गया, उसके अलावा एग्जम्पशंस लिस्ट होती है। मतलब क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल। सीए जो बच्चों की एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए देखते हैं। इन पीएसयूज ऑल्सो दे वांट टू गो इनटू मोर डिटेल, बट इधर वो बेसिक टू बेसिक आपसे पूछेगा। अगर आपको ये किसी चीज पे वो है ना, हर बंदे की कुछ स्ट्रेंथ्स होती है कि अगर किसी बंदे को पता है कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मेरा जीएसटी है, ये मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप जीएसटी पे ज्यादा ना फोकस करके बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए। क्योंकि जो मेरे को पता है कि मेरे पास अगर कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास अगर ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या किसी जीएसटी से रिलेटेड नॉलेज आते हैं, तो मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं उसको पढ़ लूंगा अगर बेसिक क्वेश्चंस कुछ भी हो गए। तो आपको अब खुद की स्ट्रेंथ्स भी पता होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स में आप एक्सेल करते हो, ताकि आप बाकी सब्जेक्ट्स पे ज्यादा टाइम लगा उनके बेसिक्स आप पढ़ सको। नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राहुल। राहुल, मेरे एंड से लाइक वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ये होगा
कि हमने इंटरव्यू के बारे में बात करी और आपने बहुत अच्छी टिप्स दी टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग जी। फॉर अस। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे राहुल कि इंटरव्यू के बारे में हमने बात करी, इंटरव्यू के पहले वाला पार्ट जो आता है एग्जाम प्रिपरेशन का, क्या आपके पास उसके लिए कुछ टिप्स है? मतलब क्या आपको लगता है कि बीइंग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि साथ साथ में जॉब भी कर रहे होते हैं या साथ साथ में लगता है उन्हें कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, तो उसके लिए डू सजेस्ट लाइक मॉक्स हम लगाएं? काफी वेबसाइट्स, काफी कंटेंट फ्री में इंटरनेट में अवेलेबल है जिसमें मॉक टेस्ट हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि प्रिपेयर कैसे करें? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी जॉब के साथ कैसे मैनेज करें? राइट प्राची। सो क्या रहता है कि अगर आप कोई भी उसका टेस्ट देने जा रहे हो पीएसयू के लिए, तो एक तो आपका फाइनेंस का सिलेबस रहेगा और एक आपका राइट। अदर देन फाइनेंस सिलेबस रहेगा, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एक्सेट्रा रहेगा। यस। तो जो बेसिक इंग्लिश होती है वो तो कोई भी कर लेगा। लाइक इंग्लिश से में कौन से क्वेश्चंस आएंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स आ जाएंगे, राइट। हाँ। एंटोनिम्स सिंटोनिम्स आ जाएंगे। एंटोनिम्स सिंटोनिम्स कुछ ऐसे होते हैं कि वो आप कितने भी पढ़ के जाओ, उधर क्रैक करना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि करेक्ट। वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। वो तो करेक्ट। हाँ। बेसिकली सबको ही रहता है। जो क्वांट का पार्ट रहता है, लाइक क्वांट का पार्ट हो गया या रीजनिंग का पार्ट हो गया, उसमें आपको डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शन टेस्ट, हम्म। लाइक साउथ वेस्ट ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हम्म। आपके पास। तो ये तो आपको हर पीएसयू में 3 to 4 क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही हाँ। मिलेंगे। तो वो पार्ट तो स्पीड आपको वाले भी करके ही जाना क्वेश्चंस है। मिलते हैं, वन ट्रेन इज पासिंग एट दिस स्पीड, राइट। अदर ट्रेन इज पासिंग राइट। एट दिस स्पीड। राइट। सो ये बेसिक क्वेश्चन जो है ये तो आपको करके जाने ही जाने हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन तो आपको फंसने ही फंसने हैं। ये तो राहुल तो मुझे उसके लगता है अलावा 10th तक की मैथ्स में भी कवर्ड है, तो अगर हम 10th की मैथ्स एक बार रिफ्रेशर पढ़ ले, यूट्यूब में कंटेंट देख ले या 10th की किताबें उठा के एनसीईआरटी पढ़ ले, तो दैट इज गुड इनफ। हम मतलब मेनली हमको क्या है कि वो टॉपिक कवर करना है। वो चाहे आप 10th की क्लास से पढ़ो, चाहे आप यूट्यूब की वीडियो से पढ़ो। क्योंकि अगर आप रीजनिंग को नेट पे सर्च करोगे, तो मैंने क्या बेसिकली करा था राइट्स की प्रिपरेशन के लिए, मैंने बेसिकली मेरे पास जो अदर देन फाइनेंस सिलेबस, मेरे पास 4 जो सिलेबस थे कि इंग्लिश का मेरे को प्रिपेयर करना है, क्वांट, रीजनिंग और इनका मेरे को प्रिपेयर करना है। तो मैंने उसके स्पेसिफिक टॉपिक्स पहले लिस्ट कर लिए, मैंने एक पेज पे नोट करके रख लिए ये टॉपिक्स मेरे को प्रिपेयर करने हैं। और उससे रिलेटेड मैंने यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के मेरे नोट्स प्रिपेयर कर लिए, क्योंकि आपको यूट्यूब पे सारी वीडियोस मिल जाएगी। अगर आपको सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड करना है या डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड करना है या अदर भी सॉरी। टॉपिक जो आपको कवर ठीक करने है। हैं, तो आप ठीक है, एक हमारा आई शॉर्ट कार्ड है, समरी प्रिपेयर कर हमारी सकते हो। एक्सीडेंट हो जाता है तो पीछे लिखा है ये नंबर पे कांटेक्ट करना। वो विजिटर को वो डूज और डोंट्स होने चाहिए। सॉरी। सॉरी। या- प्लीज प्लीज तो करें। आप एक उसको जो भी आपके वो है सिनेरियोज है, उन सिनेरियोज को आप एक शॉर्ट समरी में प्रिपेयर कर सकते हो। लाइक इन 10 to 15 पेज यू कैन प्रिपेयर अदर देन फाइनेंस लेवल। If you can prepare all the summaries in 10 to 15 minutes, it will help you a lot in last day. Like if you have uh, paper on that specific day, you will have the summary, and it will take only 1 to 2 hours, 2 hours to revise that summary. दैट इज ऑल्सो वेरी ग्रेट टिप राहुल। बहुत ही अमेजिंग टिप है ये कि हम हर चीज की समरी बनाएं सो दैट लास्ट मिनट रिवीजन पे हम बहुत ड्वेल करते हैं, दैट वी लुक एट एवरीथिंग इनटू डेप्थ। जो सीए स्टूडेंट्स का कीड़ा रहता है, बहुत डिटेल में Right. पढ़ो, Right. बट कभी कभार समरी में पढ़ना इज मोर इम्पोर्टेंट। और यही सबको लाइक फॉलो करना चाहिए। वी पीएसयू हैव में अ वो क्वेश्चन। एप्लीकेबल भी हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है पीएसयूज में, हमें अब ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीएसयूज में वो बेसिक बेसिक चीज़ें ही पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके पूछ रहे हैं। ओनली आपको अगर फॉर्मूलेज भी याद है या बेसिक चीज़ें आपको पता है, तो आप इजीली उसको क्रैक कर पाओगे। अंडरस्टूड। राहुल, वन ऑफ द क्वेश्चंस और जो बहुत व्यूअर्स से और बहुत स्टूडेंट से आता है कि जॉब के साथ कैसे मैनेज करें, तो बिकॉज आपकी खुद की काफी हेक्टिक जॉब थी, राइट। जहाँ साथ में यू मैनेज दिस, तो आप प्लीज उसके लिए कोई गाइडेंस या टिप दें। तो जॉब के साथ क्या कर सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि जॉब के साथ एक वो स्ट्रेस फैक्टर रह जाता है कि अगर आप मॉर्निंग में 9 बजे जा रहे हो और 6 बजे वापस आ रहे हो, तो पढ़ने का मन भी नहीं करता। मोस्टली बच्चों का यही रहता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह से भी मेरे बात होती है, तो वो यही कहते हैं कि मेरे को तैयारी करनी है पीएसयू की, बट पढ़ने का मन नहीं करता। तो उसमें बेसिकली ये कर सकते हैं, क्योंकि सीट जो हमारा सीए फाइनल्स के टाइम पे भी सीटिंग रहता था, 8 to 9 आवर्स का रहता था। तो बट अभी हमें वो 8 to 9 आवर्स की करने की जरूरत तो है नहीं,
क्योंकि जब भी कोई पीएसयू की वैकेंसीज आती है और वो टेस्ट डेट डिक्लेयर होती है, तो उसमें बेसिक जो गैप रहता है 2 to 3 मंथ्स का रहता है। और हम क्या कर सकते हैं कि डेली डेली बेसिस पे 1 आवर की सीटिंग बना लो आप, या हाफ आवर की सीटिंग बना लो, और उसको धीरे धीरे हम इंक्रीज कर सकते हो कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास ओनली 10 to 15 डेज है, हमारे पास 3 मंथ्स इजिली होते हैं टेस्ट, कोई भी टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ओनली बेसिक बेसिक उसको पढ़ना है। तो हम सीटिंग बना सकते हैं डेली बेसिस पे, हाफ आवर 1 आवर की। और जैसे ही हमारी 1 आवर की सीटिंग बन जाती है, लाइक 1 वीक 10 वीक्स, वो भी कहते हैं ना कि 21 दिन तक कोई भी चीज़ आप करोगे तो डेली आपकी हैबिट राइट, बन हाँ, जाती है। यस यस, तो 21 डेज तक आप लगाओ कि 1 आवर बैठे, 1.5 आवर्स बैठे। उसके बाद आप उसको सीटिंग को बढ़ा सकते हो, आप उसको 2 आवर्स कर दो। लेकिन दैट्स स्टार्ट जो आपको करना पड़ेगा हाफ आवर या 1 आवर से करना पड़ेगा। great, great, Rahul. Thank you so much, Rahul, for answering all of the questions. Time को देखते हुए, we just have one last question, and we'll keep it short. How to get into strategic decision making at PSU? Rahul, अगर short में आप इसका आंसर कर पाए, please. तो स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग में ऐसा नहीं होता कि पीएसयू में अगर आप फाइनेंस में जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग ओनली, डिपार्टमेंट विल बी डिसाइडेड बाय पीएसयू ओनली। सो Correct. लेकिन पीएसयू आपका डिपार्टमेंट क्या देख के डिसाइड करता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो करंट में आप वर्क कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस है, या जो आपका आपने आर्टिकलशिप का जो एक्सपीरियंस है वो आपने किस में करा। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर उसमें मूव करना है, फॉर एग्जांपल जीएसटी में जाना है, स्ट्रेटजिक डिसीजंस वगैरह में जाना है। स्ट्रेटजिक डिसीजन में आप ये कह सकते हो कि एक डिपार्टमेंट होता है कंपनी में, सेंट्रल अकाउंट्स करके डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे आपको पूरा डिसीजंस वगैरह लेना पड़ता है, पूरा डाटा एनालाइज करना पड़ता है, और डिपार्टमेंट्स वगैरह को बताना पड़ता है कि इधर आप लैग कर रहे हो। तो अगर आपको उधर जाना है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि आपको इंटरव्यू में उनको बता, किसी ना किसी तरह से कन्वे करना पड़ेगा कि अगर आप बातों बातों में उनको ये बता दो कि इसमें मेरा ये वो है, इंटरेस्टिंग फैक्टर मेरा इधर है, और इस चीज़ में मेरा पहले एक्सपीरियंस भी रह चुका है, तो वो चीज़ वो कंसीडर करते हैं। क्योंकि पीएसयू में क्या रहता है कि जो राइट्स में जब मैंने ज्वाइन करा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरा टेक्निकल पार्ट पे एक्सपीरियंस था, तो मेरे को डिवीज़न भी एक सेंट्रल अकाउंट्स में एट प्रेजेंट मैं काम करूँ जैसे, और मेरा आईटी वगैरह में भी पार्ट रहता है, क्योंकि मेरा टेक्निकल नॉलेज अच्छा है पहले से। तो वो चीज़ इंटरव्यू में उनको क्योंकि पता थी, तो इसलिए उन्होंने मेरा सिलेक्शन करा और उन्होंने मेरे को उसी डिपार्टमेंट में डाला। और एक चीज़ जो रहता है पीएसयू में, जो बच्चों को वो रहता है कि प्रोज एंड कॉन्स, बहुत बच्चे जानना चाहते हैं कि इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है। सो प्रोज तो आप यही कह सकते हो कि सबसे पहली चीज़ तो आ गई उसका पे स्केल, एट स्टार्टिंग में ही आपको अच्छा एक पे स्केल मिल जाता है कि अगर आपको 17-18 लाख का सीटीसी मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 17 लाख का अगर मेरा सीटीसी है तो डिवाइड बाई 12 करके मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। बट पीएसयू पे और बहुत बेनिफिट्स रह जाते हैं कि जो डिडक्ट होता है, लाइक लैपटॉप रिइंबर्समेंट्स हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, अदर देन मोबाइल अलाउंस हो गया, तो वो सारे सीटीसी का पार्ट होते हैं। तो इन जो हैंड आपको पड़ता है वो 11-12 लाख के अराउंड ही पड़ेगा अगर आपका 17 लाख का सीटीसी भी है। जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है प्रोज में रहता है वो रहता है वर्क लाइफ बैलेंस भी आपको अच्छा मिल जाता है। ऑब्वियसली जो क्लोजिंग्स वगैरह होती है उधर आपको हो सकता है एक्स्ट्रा सीटिंग वगैरह देनी पड़े, बट नॉर्मली जो है आपका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा रह जाता है। हम प्रॉस पर ही एंड करेंगे बिकॉज आई जस्ट वांट टू लाइक पार्ट वेज विद अ पॉजिटिव नोट. तो थैंक यू राहुल, एंड आई एम सो सॉरी, लाइक टाइम की नज़ाकत को देखते हुए कोई भी और क्वेश्चंस हो फॉर एवरीबडी हु इज वाचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी ऑफलाइन एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. And can't thank enough to CA Rahul Chugh, हमारे एक्सपर्ट ऑफ द डे, जिन्होंने अपना टाइम दिया और इतना एनरिचिंग सेशन रखा एंड बेसिकली अबव एंड बियॉन्ड जाके हमारे इतने सारे क्वेश्चंस को आंसर किया. सो गाइज, अगर आप पीएसयू प्रिपरेशन कर रहे हैं, टू मेक श्योर दैट यू वॉच दिस इंटरव्यू टिल द फुल एंड आप एक्चुअली CA राहुल चुग की टिप्स से अपने अंदर एक वो एज क्रिएट कर सकते हैं टू क्रैक दीज इंटरव्यूज. थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग. थैंक्स राहुल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ. थैंक यू प्राची, थैंक यू Great. एवरीवन, Thanks, everyone. Thank you. थैंक यू।